moral values, technology development. Yes, absolutely. Technology development and skillful education is a recent changes. Moral values are वो तो पहले से ही था इंक्लूडेड, मतलब ऐसा बहुत लास्ट 20 years में ही वो बदला है, ऐसे हम नहीं कह सकते. It is a core part and parcel of the education from the period of Vedic to Muslim and after the independence also. हम आज यही मेथोडोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टिसिपेंट्स को एंगेज कैसे करना है, और इसीलिए मैंने देखा कि हमारे जो इस क्लास में जो पार्टिसिपेंट्स है वो कितने एंगेज है. तो इट शोज योर एंगेजमेंट इन क्लासरूम और वेबिनार और सेमिनार or any kind of learning activity. If you facing any problem, then write in a chat box. I will definitely guide you. There is no chat box. ओके, और 1 मिनट में वेट करता हूँ और फिर हम आगे निकल जाएंगे. Privatization of education. Yes, absolutely correct. There are so many changes in social, economical, cultural, technological, system related. और ये थिंकिंग जरूरी है. वी हैव टू लुक इनटू द contemporary changes and situation before talking about 21st century skills, before talking about how to integrate 21st century skills, before talking about how to develop e-content for 21st century. I think there is one chat message now. Print material to e-content and online. Okay, in a chat someone written, no problem. मेरा मकसद तो वही है कि आप उसमें पार्टिसिपेट हो जाए. उन्होंने यहाँ चार्ट में हरविंदर कौर जी लिख रहे प्रिंट मटेरियल टू e-content and online repositories opening vast horizon, right? This is the और थोड़ा हमारे देश के दृष्टिकोण से देखें तो it is our future. ओके, आई थिंक मुझे लगता है आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज दे दीजिए. मैं आपको फिर एक बार ये जो स्क्रीन है वो शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं. अभी और नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको कुछ काम है. यहाँ पर थोड़ा सा आसान काम है. सिंगल वर्ड में आपको लिखना है. राइट एनी 3 forms और टाइप्स ऑफ ई कंटेंट. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसके लिए हम आज बात करने वाले हैं. उसी के बारे में आप कौन कौन से ई कंटेंट के टाइप जानते हैं ये इस क्वेश्चन में है. तो प्लीज राइट रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन एट लीस्ट. www.menti, same code is there. Yeah. Yes, we are receiving a response. OER, Khan Academy, right?
Presentations. Yes, presentation is a correct response. Online tutorials, absolutely correct. Khan Academy and OER is a little bit different things. PDF files, yes, absolutely. Webinars are not e-content. It is a synchronous session. If it is recorded, then it will be a e-content. Recordings of webinar, we can say it recordings of webinars. Online test, yes, correct. OER EDX is a platform who provides the online courses, but it is not e-content. It is a platform of e-content. OER is a category of e-content. Some e-content declared as a OER, some e-content declared with the copyrights. Two, three people are active only, I think. And PowerPoint presentation, most of people saying PowerPoint presentation. This World Cloud shows ट्रेनिंग वीडियोस या वीडियोस। तो मैं यही तो चाहता था कि जो मोस्ट कॉमनली ई कंटेंट जैसे होता है टेक्स्ट है या फिर वीडियोस है, तो वो कोई क्यों नहीं लिख रहा है। तो नाउ वी आर रिसीविंग ट्रेनिंग वीडियोस। ओके, नो प्रॉब्लम। वी कैन से जस्ट अ वीडियोस, एनी टाइप ऑफ वीडियो, tutorial video, animation video, training video, narrative videos, presentation videos. So many type of videos are there. Podcast videos, screencast videos. So video is a sufficient. Quizzes, yeah, many people are writing quizzes. I wait more 1 minute more, and then we will go to the presentation. मैक्सिमम लोगों ने क्विज को कहा है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को, ऑनलाइन टेस्ट्स आल्सो, टेस्ट, क्विजेस, यस, e-books, right? Someone writing e-books. Hello. Yes, madam. Hanji, okay, sir. Just see in the chat box, institutional repository can also be the e-content for the students. Institutional repository is a repository of Yes. e-content. Yeah. So that can be also e-content. No, we can't consider it's e-content. It is a repository. It is a bank. It is not a money. Okay, right. Very nice. Anyone can talk in between, no problem. मेरे क्लास में अगर बीच में पूछा गया, बीच में बताया गया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एट ए टाइम मल्टीपल लोग पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम किसी भी मोमेंट पर रुककर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूंगा और आप लोगों को बस सुनना है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस है कि आपको भी शेयरिंग करना है, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आपका योगदान भी इस प्रेजेंटेशन में उतना ही रहेगा जितना मेरा है। तो दिस इज द, मुझे लगता है मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ। आप जिन लोगों को ऐड करना है और भी चीजें, तो आप इन बिटवीन जो बीच के टाइम में आप ऐड करिए, तो ये जो वर्ड क्लाउड है वो फुलफिल हो जाए। Now I'm going to stop share of this particular, and I'm going to share my presentation. और जिन लोगों ने यहाँ पर अभी अपना पार्टिसिपेंट दिया उनके लिए क्लैप्स
क्योंकि आप लोग बहुत सक्रियता के साथ इस सेशन में है, और दिस टाइप ऑफ एंगेजमेंट इज रियली इम्पोर्टेंट रियली इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग। तो उसके बिना कुछ नहीं होगा, खाली सुनने से, खाली सुनाने से कुछ फायदा नहीं है। तो वी हैव टू सर्टेन काइंड ऑफ एंगेजमेंट, maybe it is intense engagement or a lighter engagement, but we have to engage with the content, with the discussion, anything whatever going to present in the session. So इसको प्रेजेंटेशन मोड में ले जाते ताकि आपको इजी होगा। तो वार्म अप एक्टिविटी वी हैड डिड ऑलरेडी। जैसा आप लोगों ने अभी, आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि व्हाट इज द चेंजेस इन द लास्ट 20 इयर्स। हमने देखे क्या चेंजेस हमने समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में या अन्य सभी क्षेत्रों में जो हमने देखा है, उन चेंजेस की अगर बात करें तो उसमें डोमिनेट जो चेंजेस है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हर फील्ड में चेंजेस हुए हैं, वो है डिजिटल नेचर ऑफ 21st सेंचुरी नॉलेज सोसाइटी। ये जो पिछले 20 सालों में या उसके पहले के 20 सालों से उसकी शुरुआत अगर हम मानते हैं, तो 21वीं सदी में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो हर काम जो हमारा है वो डिजिटल फॉर्म में आया है, और आईसीटी का जो एरिया है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो हर क्षेत्र पर हम देखते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो कि इसमें कितनी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, मतलब वो मीडिया है, टूल्स है, प्रैक्टिसेस है, तो ये सारी चीजें इस आईसीटी का पार्ट है। और इसी के थ्रू, मे बी थ्रू दिस मीडिया, MP3 प्लेयर्स, तो MP3 प्लेयर्स के द्वारा जो भी है वो ई कंटेंट है, लैपटॉप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, नेटवर्क्स फॉर शेयरिंग ई कंटेंट, वाईफाई फॉर शेयरिंग ई कंटेंट। तो ये जो हर चीज यहाँ पर आईसीटी में हम देख रहे हैं, ऑल तो ये जो है, ये सबसे मेजर चेंज पिछले 20 सालों में हमने देखा है। इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट उसकी मेथोडोलॉजी पर बात करनी है। आप और भी जो स्पीकर्स होंगे वो उसके ऊपर बात करेंगे, हाँ मुझे लगता है। तो जब हम ई कंटेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। यहाँ पर मैं मूक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मूक डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्रहेंसिव है, थोड़ा अलग है। ई कंटेंट इज अ पार्ट ऑफ मूक, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट मूक। ई कंटेंट इज अ सेपरेट कंटेंट। तो यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट जो जिसे हम ई कंटेंट कहते हैं, जिनकी बात आपने ऑलरेडी आपके रिस्पांस में मिंटीमीटर पर बताया था, तो वो सारी चीजें उसमें आती है। तो मैं पहले से ये क्लियर कर देता हूँ कि मूक्स को हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे। हम यहाँ केवल और केवल ई कंटेंट की ही बात करें और ई कंटेंट डेवलपमेंट की ही बात करें। मूक डेवलपमेंट इज अ लेटेस्ट स्टेज, उसके बाद की स्टेज है, और वहां पर पेडागोगिकल प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। वहां ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इम्पोर्टेंट है, वहां अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट इम्पोर्टेंट है, उनका जो असेंबलिंग है ई कंटेंट का, वो मूक्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड ई कंटेंट डेवलपमेंट में कुछ और चीजें हैं जिनको हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस ई कंटेंट डेवलपमेंट का जो बेस है, वो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में इसके बेसिस हमें मिलते हैं, और खास करके मल्टीमीडिया अप्रोच और मल्टीमीडिया यूज ऑफ मल्टीमीडिया रिलेटेड थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन थ्योरीज से ई कंटेंट को बहुत ज्यादा बल मिलता है। क्यों बल मिलता है? मल्टीमीडिया represents a powerful learning technology that have a ability to enhance human learning. It's already proved. Two main type of multimedia applications could be used. हम इस तरह के चीजों को यूज कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है एप्लीकेशन that present information
to the learners, and application that provide feedback on the correctness of learner answers on some problem. तो this two type of कंटेंट हम यहाँ पर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस की बात करते हैं। दोनों चीजों के लिए हम ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, दोनों पर्पस के लिए ई कंटेंट हो सकता है, और उसका मकसद जो है वो थ्योरेटिकल कॉग्निटिव मकसद वही है। Multimedia learning environments provide amazing possibilities for supporting a wide variety of learners. So this is one of the scope of multimedia e-content. तो इस वजह से wide मतलब variety of learners, those who are interested in a kinesthetic activity, those who are interested in a listening type of activity, those who are interested in a visualization. तो जिस तरह से हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बच्चे अगर हमारी क्लास में है या कहीं भी बड़ों का क्लास हो, बच्चों का क्लास हो, तो वहां पर वैरायटी है। ऐसा नहीं कि एक जैसे सारे बच्चे वहां बैठे हैं, सारे एक ही तरीके के बच्चे हैं। इन अ ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्लासेस हम जो टीचिंग करते हैं, जो भी हमारा डिलीवरी मोड होता है, जो भी हमारा कंटेंट होता है, वो कंटेंट इस तरह के वैरायटी ऑफ लर्नर्स को फैसिलिटेट करने में उतना सक्षम नहीं होता है। तो थ्रू द मल्टीमीडिया ने ये रास्ता खोला है। टेक्नोलॉजी के द्वारा मल्टीमीडिया के यूज के माध्यम से हम जिन लोगों को देख के सीखने में अभिरुचि है, देख के सीखने में गति है, उनको तो कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिनको सुनकर सीखने में गति है, उनको भी कवर कर सकते हैं। जिनको स्टोरीज इस तरह की चीजों में गति है, उनको उस तरीके की चीजें ऐड करके मल्टीमीडिया का यूज मतलब देखने वाली, सुनने वाली, विजुअलाइजेशन, ग्राफिक्स, ये जो मल्टीपल चीजें हैं, उनको हम एक ही प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं थ्रू द ई कंटेंट। तो ये पॉसिबिलिटीज मल्टीमीडिया अप्रोच को आगे ले जाने की मतलब वास्तव में आती है थ्रू ए कंटेंट। तो तीसरा fourth point is mindful use of multimedia based e-content will increase student learning. All are the proved conclusions. ये सारे पहले से जो researches हुए हैं related to multimedia approach and related to e-content, तो उससे related जो basic धारणाएं हैं e-content development के पीछे की, वो धारणाएं मैंने आपके साथ शेयर की। बट यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट में एक इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़ा गया है, माइंडफुल यूज ऑफ मल्टीमीडिया बेस्ड ई कंटेंट। तो कुछ भी यूज करने से उसका उपयोग नहीं होगा, तो उसकी वजह अगर हम उसको माइंडफुली साइंटिफिकली उसको यूज करें, समझ के साथ, विथ द फुल ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से लर्निंग को इंक्रीज करने में होता है। तो ई कंटेंट फॉर द लर्निंग, तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अध्ययन के लिए जो ई कंटेंट है उसकी बात करने वाले। जाने के पहले एक चीज जो कि हम आगे नहीं डिस्कस करेंगे, बट यहीं पर मैं बताना चाहूंगा, ई कंटेंट के दो तरीके हैं आज के टाइप में। टू टाइप ऑफ ई कंटेंट की चर्चा होती है, एक क्रिएटेड ई कंटेंट एंड अनदर वन इज अ क्यूरेटेड ई कंटेंट। तो क्रिएशन एंड क्यूरेशन बोथ टर्म आर वेरी पॉपुलर इन नाउडेज, और हम दोनों पर फोकस करते हैं कि क्रिएशन और क्यूरेशन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट मानते हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ ई कंटेंट। क्रिएशन क्या है? कंटेंट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट फ्रॉम scratch based on your chosen topic and presenting this to your learner as a unified content course. तो ये जो टाइप का कंटेंट है उसमें हम अपने कोर्स के लिए, अपने टॉपिक के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए अपने हिसाब से एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फुल्ली हम उसको क्या करें, डेवलप कर रहे हैं। और इन अदर साइड, इन अ क्यूरेशन, content curation is the process of gathering existing information like blogs, social media posts, videos, and ebooks relevant to your chosen topic, filtering through to find the most accurate bits and sharing them with your learners. तो यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे जो हम क्रिएशन में कर रहे। क्रिएशन में हम
हर चीज बना रहे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां पर ग्राफिक्स डालना है तो वो डाल रहे हैं, या फिर टेक्स्ट वाला अगर डेवलप कर रहे थे उसमें हम पूरा टेक्स्ट हम खुद लिख रहे हैं, तो वो क्रिएशन में आएगा। वो वो बहुत स्पेसिफिक हम बनाते हैं अपने कोर्स या सब्जेक्ट अपने ऑडियंस के लिए। बट क्यूरेशन क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट आज अवेलेबल है और वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि डिजिटल जो चेंजेस आया है, जो इंटरनेट के द्वारा आज हमारे पास हर कोई कंटेंट अवेलेबल है। अगर वो कंटेंट प्रॉपर ओपन लाइसेंस के द्वारा लाइसेंस किया है और जिसने क्रिएट किया है उसने अगर हमें उसको रीयूज करने की अथॉरिटी दी है, रीमॉडिफाई करने की अथॉरिटी दी है, तो हम डेफिनेटली हम फिर से वही काम नहीं करेंगे, वही मेहनत दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय हम अपने लिए अप्रोप्रिएट कंटेंट को कलेक्ट करके उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं एज पर आवर नीड, एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो टॉपिक है उसके हिसाब से, हमारे स्टूडेंट के हिसाब से उसको रीडिजाइन कर सकते हैं। तो उस तरह से, और आजकल हम कितनी भी बात करें कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बट अगर हम कोई इन्फोग्राफ बना रहे हैं तो हम हर चीज इन्फोग्राफ की नहीं बनाते हैं। हम कुछ मैसेजेस, टेक्स्ट जो हमारे कोर थीम है वो डेवलप करते हैं, बाकी इमेजेस, ग्राफिक्स, शेप, ऑल थिंग्स जो है वो हम किसी और से लेते हैं जो पहले से बिल्ट है, टेम्पलेट्स हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम क्यूरेशन के थ्रू जाते हैं। और आज के दिनों में जहां OER की बात होती है, ओपन रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो वहाँ क्यूरेशन क्यूरेशन को बहुत ज्यादा स्कोप है। उसमें डेफिनेटली कुछ इशू है, लेकिन क्यूरेशन भविष्य है, क्रिएशन अभी का टाइम है, पिछले 20 सालों का और अभी आगे के कुछ सालों में। बट क्यूरेशन इज अ वास्ट फ्यूचर ऑफ एजुकेशनल कंटेंट और ई कंटेंट और OER। नेक्स्ट, ई कंटेंट जो आप लोगों ने अपने रिस्पांस में बताया था उसी की हम डिवाइड करते हैं। एक तो ई कंटेंट हम बेसिकली दो विभाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं। लर्निंग रिसोर्सेस, ई कंटेंट एज अ लर्निंग रिसोर्सेस। तो ये ट्रेडिशनली बहुत पहले से हम इन चीजों को ई कंटेंट मानते थे, और लर्निंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा ई कंटेंट के बाहर छोड़ा जाता था, क्योंकि लर्निंग एक्टिविटीज ई मोड में करना तब संभव नहीं था, इसलिए लर्निंग एक्टिविटीज को ई कंटेंट में कंसीडर नहीं किया जाता। But nowadays we can convert all teaching learning, most of teaching learning activities, or create such a teaching learning activities जो हम ऑनलाइन या ई माध्यमों के द्वारा कर सकते हैं। अभी ई कंटेंट को उसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, वो आप लोग कहीं भी देख लो ई कंटेंट क्या है, किस चीजों को। बट यहाँ लर्निंग रिसोर्सेस, कौन कौन से लर्निंग रिसोर्सेस है? टेक्स्ट फॉर्म में जो है, मे बी इट इज हैंडबुक, ई बुक, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, इन अ फॉर्म ऑफ PDF, इंटरएक्टिव ई बुक, फ्लिप बुक, सो मेनी टाइप ऑफ अवेलेबल। वहां पर बुक के जो फॉर्मेट्स है, इस तरह के टेक्स्ट ई कंटेंट के जो फॉर्मेट है वो बहुत सारे अवेलेबल है। बट पॉपुलरली, मतलब इजीली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला सबसे, मुझे लगता है, जैसे आप लोगों ने किसी ने रिस्पॉन्स में बताया था PDF। तो PDF हमारे यहाँ खास करके भारत में तो हम PDF ज्यादा यूज करते हैं। तो उस तरह का ई बुक जो है उसको हम ई कंटेंट कहते हैं। इट इज अ रिसोर्स, लर्निंग रिसोर्स। वीडियो ट्यूटोरियल्स, सेकंड मेजर और लार्ज ई कंटेंट इज वीडियो ट्यूटोरियल्स। मे बी अ डॉक्यूमेंट्री, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, ड्रामा, डेमोन्स्ट्रेशन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें उसमें कंसिडर होती है। थर्ड है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सिंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग और पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, या फिर म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स, किसी भी तरह के जो MP3 टाइप के जो रिकॉर्डिंग्स होती है उनकी हम वहां बात कर सकते हैं। पिक्चर एंड ग्राफिक्स, तो पिक्चर्स है जो कि कैमरे से लिए हुए हो सकते हैं, पेंट किए हुए हो सकते हैं, ड्राइंग किया हुआ हो सकता है। तो वहाँ हर तरह के पिक्चर्स, इमेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में जो अलग अलग प्रकार है उसके, डेकोरेटिव ग्राफिक्स है, एनालिटिकल ग्राफिक्स है, तो वो अलग अलग जो ग्राफिक्स आते हैं उनकी बात वहां पर एज अ ई कंटेंट हम करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप, तो दूसरा जो ई कंटेंट आता है एज अ लर्निंग रिसोर्स,
तो इट इज अ कॉन्सेप्ट मैप। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर विजुअलाइज किया जाता है मैप में, उसकी प्रोसेस, उसके लेवल, उसके रिलेशनशिप के आधार पर उस कॉन्सेप्ट में जो कुछ चीजों से वो कॉन्सेप्ट बनी है उनको कॉन्सेप्ट मैप्स, माइंड मैप्स, ये चीज भी हम लर्निंग रिसोर्स में इंक्लूड करते हैं। टेम्पलेट्स एंड वर्कशीट्स, तो टेम्पलेट एंड वर्कशीट्स भी अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग रिसोर्सेस। इसमें और चीजें जुड़ सकती है जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पीपीटीज, तो वो भी वहां पर उसमें ऐड हो सकते हैं। तो टेम्पलेट्स एंड वर्कशीट्स के यहाँ हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने वीडियो प्रेजेंटेशंस में उनको कंसिडर किया था। लर्निंग एक्टिविटीज, दिस इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई कंटेंट। तो ये तो ई लर्निंग रिसोर्सेस है। ये जो हम दूसरे पार्ट में देख रहे हैं शेयरिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या आता है, डिस्कशन फोरम्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द ई कंटेंट, क्योंकि डिस्कशन फोरम भी स्पेसिफिकली डिजाइन किया होता है, वहां भी जो स्ट्रक्चर है वहां भी लॉजिक्स इम्प्लीमेंटेड। तो डिस्कशन फोरम, चार्ट रूम्स जिसको हम शेयरिंग एक्टिविटीज कहते हैं, या फिर एग्जीबिशन रूम जैसे पैडलेट का प्लेटफॉर्म दिया है और उसके ऊपर लोग शेयरिंग कर रहे हैं, या कोई मतलब कोलैबोरेटिव वर्कशीट दिया हुआ है उसमें वो शेयरिंग, एनी टाइप ऑफ शेयरिंग, बट पॉपुलरली टू टाइप ऑफ शेयरिंग इज डिस्कशन फोरम्स एंड चैट रूम्स। रिफ्लेक्टिव स्पॉट, क्वेश्चन, डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो डायरेक्टिव स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ये रिफ्लेक्टिव स्पॉट फिर ऊपर लर्निंग रिसोर्सेस में हो सकते हैं, शेयरिंग एक्टिविटी अल्सो लर्निंग रिसोर्सेस में इंक्लूड किया। प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन प्रोजेक्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं जो ई कंटेंट में कंसीडर किए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, जो वर्चुअल लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट्स की स्कोप है, आज पैंडेमिक में हम खास करके ये बात देख रहे हैं कि आज बहुत सारे स्कूल जो है, कुछ कमर्शियल वेबसाइट्स है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड करते हैं और वहां पर स्टूडेंट वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। डिजाइन क्रिएशन, डिजाइन एंड क्रिएशंस, एनी टाइप ऑफ डिजाइन। तो अगर हम बीएड की बात करें तो लेसन प्लान डिजाइन करना, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन तैयार करना, रूब्रिक्स तैयार करना, इस तरह के जो असाइनमेंट्स होते हैं डिजाइन क्रिएशन वाले असाइनमेंट्स। पजल्स, क्विजेस एंड गेम्स, ये सारी चीजें जो है उनको हम ई कंटेंट कह सकते हैं। आप इनमें और चीजें जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही चीजें हैं, बट वो चीज कहीं ना कहीं इनमें से किसी कैटेगरी में, किसी ग्रुप में आ सकती है। तो अभी हम इस बात करेंगे कि इसको डेवलप कैसे करें, मतलब इसकी मेथोडोलॉजी। लेट्स थिंक अगेन, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, आपको सोचने के लिए कुछ एक्टिविटी है। As per the cognitive theories of multimedia, what will be the most impactful e-content? तो आप लोग फिर से मेंटी पर जाएंगे। जो भी अभी हमने बात किया, ई कंटेंट के अलग अलग टाइप्स देखे, तो उसमें से आपको एज पर द कॉग्निटिव थ्योरी, जो हमने बात की कॉग्निटिव थ्योरीज की, मल्टीमीडिया थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमने डिस्कस किए हुए जो अलग अलग ई कंटेंट है, उसमें से आपको जस्ट बस उसको आपको क्या लगता है, इस तरह से ये क्वेश्चन। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, तो वहां कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है वो बस उसके लिए इट इज अ रिफ्लेक्टिव टास्क। होप आप लोग वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं उसकी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से इसको स्टॉप करके वो शेयर करने, कोई बात नहीं, आप लोग जब तक कर रहे हैं तब तक मैं वो स्क्रीन भी शेयर।
Sir, what's the code? Please mention again. सॉरी, Sir, Menti code क्या था? एक मिनट, मेंटी का मतलब ये देखिए menti.com. We are receiving some responses. Concept map and mind map, most of लोगों का कहना है. E-tutorial videos. Second, concept map, mind maps. As per the cognitive theory of multimedia, what will be the most impactful e-content? Picture and graphics, text, templates and worksheets, audio recordings. I'm waiting for a few more responses. Yes, sir, it can be interactive videos. Okay. So that will be more interactive. Just Yeah, like we, in the present. first category, tutorial video, we can add something in that interactive tutorials or a video. After that, it will be a number one, it will become a number one position as per your opinion. Very nice. मतलब इस एक्टिविटी को आप लोगों ने अच्छे से रिप्लाई किया है, तो अभी कितने नंबर्स है वो तो मैं देख सकता हूँ. 9 people are responded. Compared to earlier, it's better. Can I stop screen share? हमारे को टेंडेंसी पता चल गई है, तो अभी उसमें मेजर चेंज होगा कि नहीं पता नहीं. बट आप अपना जो स्क्रीन है वो मतलब आप अपना मेंटी पर रिस्पॉन्स जब हमारा प्रेजेंटेशन शुरू है उस वक्त भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस. दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडेज डिस्कशन. तो अभी हमारा नियर अबाउट 1 आवर हो गया है, तो लास्ट 20 मिनट्स में हम आपके क्वेश्चंस और आपके साथ ओपन डिस्कशन करेंगे, और तब तक मतलब अभी और 40 मिनट हम ई कंटेंट डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसकी बात करेंगे. इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स है जो इम्पोर्टेंट है. पहले फर्स्ट जो स्टेप है या फर्स्ट जो फेजेस, वी कैन कॉल इट फेजेस ऑफ ई कंटेंट डेवलपमेंट, और वी कैन कॉल इट अ साइकिल ऑफ ई कंटेंट डेवलपमेंट. इट इज अ प्रोसेस. तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है. ई कंटेंट डेवलप करने की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है. ऐसे नहीं कि एक बार किया स्टैटिक ई कंटेंट, वहां भी फिर 2 टाइप के ई कंटेंट होते हैं, एक स्टैटिक ई कंटेंट और दूसरा डायनामिक ई कंटेंट. तो स्टैटिक ई कंटेंट ये पिछले समय की बात है, मतलब अभी ये इतिहास जब मतलब हम बोल सकते हैं ना हिस्ट्री हो जाएगी कुछ दिनों के बाद. अगर हम बात करें तो स्टैटिक ई कंटेंट इतिहास में चला जाएगा.
डायनामिक ई कंटेंट की बात सामने आएगी और वो ही ज्यादा पॉपुलर होगी, बिकॉज डायनामिक ई कंटेंट जो है उसमें वो स्कोप रहेगा कि हम जो भी नए चेंजेस है, नई चीजें ऐड करनी है, इम्प्रूव आफ्टर इवैल्यूएशन, हमें अगर उसमें करेक्शंस करने हैं, रिवाइज करना है, तो we can do it in a dynamic e-content, but in a static e-content we can't do anything in that particular content. We create another content, but in a static form of content we can't do anything. हाँ, वहाँ हम एडिशन, जैसे बुक्स में हम एडिशन निकालते हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, वो निकाल सकते हैं, बट इट इज क्रिएट कंफ्यूजिंग, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेटर वे डायनामिक ई कंटेंट डेवलपमेंट जो है ऑप्शन रहेगा, वो बेहतर रहेगा, वो आने वाले भविष्य की डिमांड रहेगी। तो कोई भी हो, चाहे आज स्टैटिक बनाना हो या फिर डायनामिक ई कंटेंट डेवलप करना हो, तो हमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वही रहेगी जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। At a first phase analysis, it is a very important phase, because यहाँ पर ई कंटेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग कंटेंट की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ हम ये नहीं कंसिडर कर रहे कि हाँ एक वीडियो जो है, मतलब एंटरटेनिंग वीडियो किसी ने बनाया है, टिकटॉक वीडियो बनाया है, तो ऐसे लाखों हजारों वीडियोस बनते रहते हैं, तो इज ऑल थिंग्स, वो सारी चीजें ई कंटेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो किस पर्पस के लिए बने हैं, उनका पर्पस एंटरटेनमेंट है कि लर्निंग है। तो हम जिस की बात कर रहे हैं, जिस ई कंटेंट की बात कर रहे हैं, वो लर्निंग कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो एनालिसिस फेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर दिस पर्पस, इस हेतु के लिए कि हमारा जो ई कंटेंट है वो लर्निंग को अपलिफ्ट करे, स्टूडेंट्स के लर्निंग को बेहतर बनाए, उनके अचीवमेंट को इंक्रीज करे, इसके लिए हम ई कंटेंट बना रहे, वो चाहे मूक्स में इंक्लूडेड हो, वो चाहे लाइव इंटरेक्शन फेस टू फेस क्लासरूम में यूज करने के लिए हम डेवलप करें, या फिर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम डेवलप करें, किसी भी मकसद हो, लेकिन यहाँ पर्पस जो है वो लर्निंग है। तो दैट्स व्हाई एनालिसिस फेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे रैंडमली वो करने की चीज नहीं है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर समझना है तो टिकटॉक वीडियो तो कोई भी पर्सन बना सकता है, कोई भी बना सकता है, उसमें कोई है ही नहीं, दोज हु आर अनलर्न, मतलब जो सीखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो भी टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं और वो पॉपुलर भी हो सकते हैं यूट्यूब पर। बट जब हम उसकी लर्निंग वैल्यू की बात करते हैं तो उस स्थिति में मे नॉट बी अ गुड, वो जो वीडियो है वो पॉपुलर हो सकते हैं, बट लर्निंग के लिए वो उतने उपयोगी नहीं हो सकते। तो दैट्स व्हाई ई कंटेंट डेवलपमेंट इज ये कोई एक्सपर्ट का काम है, मतलब यहाँ सर्टन एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर कुछ एक्सपर्टीज जरूरी है। और उसमें किस तरह की एक्सपर्टीज चाहिए, तो यहाँ पेडागोगिकल एक्सपर्टीज चाहिए, यहाँ कॉग्निटिव कॉग्निशन प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग उस ई कंटेंट डेवलपर को चाहिए। विदाउट दिस टाइप ऑफ इस तरह के अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर कोई ई कंटेंट बनाता है तो मे बी इट विल यूजफुल और मे बी इट विल नॉट बी यूजफुल, तो वो श्योरिटी उसमें से क्रिएट नहीं हो सकती है। So at a first step or a phase in at analysis phase, we have to define learning outcomes. वो भी सामान जो लेके आया ना, तो लर्निंग आउटकम्स, तो जो भी कंटेंट बनेगा उसका जो नाम है मुकेश, महेश। हाँ, यस प्लीज, आर यू आस्किंग समथिंग? No, sir. Continue, please, sir. Continue. Define learning outcome. This is a very important phase. Earlier we call it objective of the content or objective. उसके जो objective है उसको पहले से फिक्स करना जरूरी है। According to objectives वो कंटेंट बनेगा। तो अभी ये टर्म बदल के क्या हो रही है, लर्निंग आउटकम्स, व्हाट हमें क्या चाहिए इस, भले ये 2 मिनट का वीडियो है,
या फिर 3 पन्ने का एक टेक्स्ट है, या फिर एक सिंगल पेज इंफोग्राफिक है, तो इसका लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? नॉट अ आउटकम ओनली, learning outcome. Whenever we use it a advertising purpose, that time we can call it a outcome of this product. But यहाँ पर हमें in a sense of learning, वहां पर उस हिसाब से उसको देखना है, what will be the learning expected learning outcomes. तो पहले हमें वो learning outcomes define करने होंगे as per our subject, as per the age group of that particular class or students. उनका अपने स्टूडेंट्स का सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक, वहां उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, इन सारी चीजों को एनालिसिस करके हमें उनको बहुत क्लियरली टैंजेबल लर्निंग आउटकम्स में डिफाइन करना होगा। हम चाहते क्या है, What will be the outcome? ये वीडियो देखने के बाद क्या बदलाव होगा? Student will be able to do this thing. Student will be able to arrange this thing. Student will be able to manage this thing. अगर हम कोई demonstration वीडियो बना रहे हैं तो student will be able to arrange, restructure, redesign, assemble. तो this type of verbs हमें उसमें use करने हैं, मतलब define करने हैं। तो first we have to define our expected learning outcomes according to our subject, according to our students, according to their age group, according to their socio-cultural background. तो इन सारी according to their previous knowledge also. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें learning outcomes को define करना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है, डिफाइन लर्नर नीड्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लर्नर की नीड क्या है? हमने लर्निंग आउटकम बना दिया, इट्स फाइन, वो रहेगा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, बट लर्नर की नीड क्या है? वो किस चीज को एंजॉय करता है, उसको क्या पसंद आता है, उसको क्या पसंद नहीं आता है, वो किस तरह के कंटेंट के साथ कंफर्टेबल है और किस तरह के कंटेंट के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं, इवन इतना ही नहीं, तो लर्नर्स नीड्स में लर्नर के पास कौन से स्किल्स है। अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई वर्कशीट हम बनाए हैं, तो उस वर्कशीट के लिए यूज करने के लिए उसको सर्टन स्किल रिक्वायर्ड होंगे पहले से, तो वो सर्टन स्किल्स उसमें है क्या, तो उन चीजों का एनालिसिस करना भी जरूरी है। मतलब क्या है, जब हम कोई भी ई कंटेंट बनाने जाएंगे तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन लर्निंग आउटकम्स। तो एक तरह का टेम्पलेट अगर हम बनाने की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में हमें लर्निंग आउटकम डिफाइन करने पड़ेंगे, देन सेकंड कॉलम में हम जाएंगे और वहां लर्नर्स की नीड क्या है इन माय क्लास, इन माय लर्नर्स, तो वो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में डिफाइन द स्पेसिफिकेशन, उसके बाद डिफाइन क्या होगा कि वहां वीडियो इफेक्टिव रहेगा क्या, वहां टेक्स्ट इफेक्टिव रहेगा, वहां इन्फोग्राफिक ज्यादा इफेक्टिव रहे। क्योंकि अगर जब हम लर्नर को नीड क्यों डिफाइन करते हैं तभी पता चलेगा। अगर मेरे स्टूडेंट के पास टैब नहीं है, मोबाइल नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है इस तरह का डिवाइस जिसमें वो वीडियो देख सके, इन दैट केस अगर इस तरह की ऑडियंस है मेरी, तो मुझे किस तरह का स्पेसिफिकेशन रहेगा, तो मैं वहां पर टेक्स्ट दे सकता हूं क्या, उस तरह का टेक्स्ट के फॉर्म में वो ई कंटेंट दिया जा सकता है क्या, जिसमें कि इंटरनेट ज्यादा नहीं लगता है, फाइल बस उसको दे दिया। वीडियो है तो उसके लिए एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन जरूरी होते हैं। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा हमें लर्नर के नीड के हिसाब से, और फिर स्पेसिफिकेशन होगा कि मेरा कंटेंट किस तरह का होगा। मतलब वीडियो है तो फिर वीडियो में भी स्पेसिफिकेशन कि उसमें ग्राफिक्स कितना रहेगा, इमेजेस कितना रहेगा, ऑडियो कितना रहेगा, कमेंट्री कितनी रहेगी, टेक्स्ट कितना रहेगा, क्योंकि इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। एज पर द मल्टीमीडिया मॉडल हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वैरायटी ऑफ मीडियाज उस वीडियो में किस तरह से आप पाती है और उसका क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, ये हमें इस स्टेप पर डिसाइड करना है। मतलब थर्ड अगर हमारा कॉलम रहेगा तो हमें स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने का कॉलम होगा। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो
तो आप एक टेम्पलेट खुद का बना सकते हो इस ग्राफिक को समझ के, और वो आपका एक ब्लूप्रिंट आपके ई कंटेंट डेवलपमेंट का, व्हाटएवर कोई भी ई कंटेंट आप डेवलप करें, स्पेसिफिकेशन तो आपके पहले 2 स्टेप होने के बाद ही डिसाइड हो रहे हैं। देन एक बार स्पेसिफिकेशन डिसाइड हो गया तो फिर आती है डिजाइन फेज। स्पेसिफिकेशन में मैंने ये तय कर लिया, आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ वीडियो, I have decided to create a e-text, I have decided to create a infographics। एक बार मेरा ये तय हो गया तो उसके बाद में फिर फेज आती है डिजाइन फेज। तो डिजाइन फेज पर भी कुछ चीजें हमें करनी है, जैसे कि डिफाइन हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट। तो अभी एक तय हो गया कि मुझे इन्फोग्राफ बनाना है, तो इन्फोग्राफ में जो कंटेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, शेप्स कौन से रहेंगे, टेक्स्ट कौन से यूज होंगे, कलर कौन सा रहेगा, ये सारी चीजें भी हमें वहां पर डिफाइन करनी है। और इन सारे चीजों का क्राइटेरिया क्या रहेगा डिफाइन करने का, उसका क्राइटेरिया रहेगा लर्निंग, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स एंड लर्नर्स नीड। ये 2 चीजों की मतलब इस 2 चीजों की टॉर्च में, इस 2 चीजों के लाइट में हम क्या करेंगे, डिफाइन हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट। वो प्रेजेंट किस तरह से प्रेजेंट होगा, वो कंटेंट, वो वीडियो के कैसे प्रेजेंट होगा, उसकी लेंथ कितनी रहेगी, उसका ये हर चीज जो है उसके बाद वो डिसाइड करेंगी। मतलब कौन डिसाइड करेगा हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट, एक तो लर्निंग आउटकम्स, दूसरा लर्नर्स नीड्स एंड व्हाटएवर स्पेसिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी फिक्स। तो इनके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंट कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना। देन मैप अ एजुकेशनल सिनेरियो। अभी उसके बाद में जैसे हम लेसन प्लान की बात करते हैं कि अभी वो बन गया, तो एजुकेशनल सिनेरियो क्या है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, मतलब यहाँ जब हम जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज क्या रहेगा, फिर उस नॉलेज को कंसीडर करके, अज्यूम करके वहां पर हम कोई डिफिनीशन ऐड कर रहे हैं, वहां पर कुछ एनिमेशन ऐड कर रहे हैं, वहां कुछ नई कॉन्सेप्ट हम ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एजुकेशनल सिनेरियो को क्या करना है, एक मैपिंग करना है उसका। तो उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके बाद में उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स है उनका परसेप्शन किस तरह से उस सब्जेक्ट को है देखने का। तो ये सारी चीजों को हमें मैप करना होगा नेक्स्ट कॉलम में, और उसके बाद हमारा जो डिजाइनिंग है वो अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बनेगा। डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो हमारा एनालिसिस कुछ और है और डिजाइन कुछ और बनेगा, तो उस केस में भी हम ये श्योरिटी नहीं कर सकते कि हमारा जो ई कंटेंट है, व्हाटएवर, वो कोई भी ई कंटेंट हो सकता है जिसकी बात हमने पहले वाले स्लाइड में की थी, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो लर्निंग आउटकम्स नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैपिंग एजुकेशनल सिनेरियो, मतलब आपके पास कितना टाइम है, सारी चीजें एजुकेशनल सिनेरियो में आपके पास रिसोर्सेस कौन सी है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मैपिंग करना है। और उसके बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन। ये डिजाइन फेज हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेटिंग द इंटर रिलेटेड मीडिया एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपने डिजाइन तो कर लिया एक बार, तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि अभी मुझे वो इंटीग्रेट करना है इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन अ फॉर्म ऑफ वर्कशीट, इन अ फॉर्म ऑफ इन्फोग्राफ्स। तो वहां पर जो मीडियाज है, मीडिया मतलब क्या है, पिक्चर्स है, साउंड्स है, ग्राफ्स है, शेप्स है। तो जो मैंने मैपिंग ऑलरेडी किया है और जो कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है उसका डिफाइन हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटर रिलेटेड मीडिया, टेक्स्ट से रिलेटेड ही वीडियो, ऐसा ना हो कि टेक्स्ट कुछ और चल रहा है, वीडियो में कुछ और जा रहा है। बहुत बार, बहुत एजुकेशनल वीडियोस में मैंने ऐसा भी देखा है कि कमेंट्री कुछ है स्पेसिफिक, टीचर इलाबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट उनके स्क्रीन पर जो पिक्चर्स जा रहे हैं वो पिक्चर्स कितने रिलेवेंट है, मे बी रिलेवेंट, बट वो जो रिलेवेंसी लेवल है वो मैक्सिमम रिलेवेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्क्रीन पर कुछ चाहिए था, मतलब मल्टीमीडिया अप्रोच कहता है कि सुनने के साथ साथ देखने को भी मिलना चाहिए, देखने के साथ साथ पढ़ने को भी मिलना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ करने को भी, हाथ को भी कुछ काम मिलना चाहिए। तो इसके
लिए बस डालने के लिए वो डालने से वो फिर डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो आपकी सुनने की जो बात है वो सुनने की बजाय वो पिक्चर देखेगा, और वो जो कॉन्सेप्ट से उसका रिलेवेंस ना होने की वजह से वो आपकी बात को स्ट्रांग करने की बजाय वो पिक्चर जो है वो आपकी बात को वीक कर सकता है। मतलब ये कंटेंट बन तो जाएगा बट उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो इफिशियंसी है वो क्रिएट नहीं होगी। तो ये बहुत क्रूशियल चीज है, इंटीग्रेशन फेज जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत सोच समझ कर, अगर हमारा प्लानिंग ठीक है, एनालिसिस और डिजाइनिंग फेजेस पर हमने सही से काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो मतलब इंटर रिलेटेड मीडिया एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन इफेक्टिव हो सकता है, और फिर हमारा जो कंटेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसका इवैल्यूएशन आता है, इवैल्यूएशन की फेज आती है। इवैल्यूएशन में वो एजुकेशनल है तो उसकी एजुकेशनल लर्निंग वैल्यू हमें देखनी है कि वो हम खुद उसको इवैल्यूएट करें, हम खुद वो एक्सपेरिमेंट करके वो स्टूडेंट्स को दे के कि उसमें से उन्होंने कितना सीखा है। तो लर्निंग वैल्यू उसमें, उस वीडियो से, उस टेक्स्ट से उन्होंने कितना सीखा है। और ये हाउ टू कैलकुलेट अ लर्निंग वैल्यू ऑफ एनी ई कंटेंट मटेरियल और एनी मटेरियल। आप अपने लेक्चर, अपने एक लेसन का भी लर्निंग एजुकेशनल इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्टेड क्या थे और उस लर्निंग आउटकम्स में से कितने आउटकम्स अचीव हुए एट द एंड ऑफ लेसन। तो सेम यहाँ पर भी उसका इवैल्यूएशन हो सकता है कि हमने किस पर, अगर स्टूडेंट डिफाइन करने के लिए एबल होगा ऐसे हम मान रहे थे, तो आफ्टर द watching this particular media student have to define such concepts। तो वो अगर होता है तो आपका लर्निंग आउटकम होगा, एजुकेशनल वैल्यूज उसमें निश्चित रूप से है। साइंटिफिक, तो साइंटिफिक यहाँ क्या है, साइंटिफिक कैसे है? तो साइंटिफिक इन द सेंस कि पेडागोगिकल जो चीजें है, मतलब जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को ध्यान में रखना, कलर्स कॉम्बिनेशंस, कलर्स और लिसनिंग एंड पिक्चर्स, तो एक दूसरे पर वो डोमिनेट नहीं हो रहे हैं, वो चीजें एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं हो रही या मिसमैच नहीं हो रही। इस दृष्टिकोण से जो डिजाइन का एक साइंस है, डिजाइनिंग का साइंस, और उसको साथ हमें कंबाइन करना है पेडागोजी, तो इन दोनों का उसमें यूज हो गया है। तो हम कह सकते हैं ये इवैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया हो सकता है कि वो साइंटिफिक है और रैशनल है। व्हाई, इस चीज का वहां पर जवाब है। अगर हमने एनालिसिस किया है, डिजाइन किया है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ साइंटिफिक। उसके बाद में यूजर फ्रेंडली, बहुत अच्छा बना है बट वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब मेरे बच्चे पंजाबी जानते हैं और वो है इंग्लिश में, है तो बहुत बढ़िया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगर वो किसी ऐसे फॉर्मेट में है जो कि हमारे डिवाइस में रन ही नहीं होता है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब पीडीएफ जो फॉर्मेट है वो मोस्ट ऑफ डिवाइसेस में रन होते हैं, बट अदर जो फॉर्मेट्स है, कई फॉर्मेट्स के लिए स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में जरूरी होते हैं। तो उस केस में यूजर फ्रेंडलीनेस उस कंटेंट में नहीं रहता, या फिर उस कंटेंट का यूजर फ्रेंडलीनेस कम हो जाता है। तो ये बात भी देखनी है जब भी हम कोई ई कंटेंट डेवलप करें, तो वो ही कंटेंट यूजर फ्रेंडली हो, मतलब इजीली वो उसको एक्सेस कर सके, इजीली उस कंटेंट पर उसका कंट्रोल हो एक तरह से। वो चाहे तो आगे जाए, चाहे तो रुके, मतलब उसको एक ऑटोनॉमी उसमें होनी चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं। वो स्किप करना चाहे तो कर सके, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट में ऐसा बच्चे देख नहीं रहे पूरा वीडियो तो उसको रोक दो। अगर आपके स्ट्रेटेजी में वो स्ट्रेटेजिकली किया है तो देन ओके, बट अननेसेसरीली उनको रिस्ट्रिक्शंस डालना वीडियोस में, इन चीजों में, तो वो जरूरी नहीं है। यूजर फ्रेंडली का अर्थ है कोई भी उसको बहुत इजीली देख सके। तो ये क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। बेसिकली ई कंटेंट एंड एनी अदर एजुकेशनल रिसोर्स में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझना जरूरी है जब हम कोई भी ई कंटेंट डेवलप करते हैं। तो अदर एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे हम अगर अभी प्रेजेंटेशन को बात करते हैं, एज अ प्रेजेंटेशन वो एक ई कंटेंट भी हो सकता है। बट देखो, अभी ई कंटेंट बना रहे हैं तो वहां आपका लर्निंग आउटकम डिफाइन होना चाहिए। तो उस केस में अदर में मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ कि पीपीटी है। तो जब हम अपने क्लासरूम में फेस टू फेस क्लास के लिए पीपीटी डेवलप कर रहे हैं,
यहाँ पर जब मैंने ये पीपीटी डेवलप किया तो उस वक्त मैंने ये मान के इसको डेवलप किया है कि आई एम देयर, मैं वहां पर हूं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं वहां पर फिजिकली या वर्चुअली एनी मोड ऑफ किसी भी माध्यम से मैं वहां पर हूं। तो अभी एक दूसरे टाइप का ई कंटेंट की बात करें जो कि मास के लिए अवेलेबल है, वहां कोई एक्सप्लेन करने वाला कोई अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू द ई कंटेंट, मिसकॉन्सेप्शन थ्रू द ई कंटेंट हो सकता है। तो यहाँ हमें जब हम ई कंटेंट फॉर मासिफिकेशन, मास के लिए बना रहे हैं, जैसे मूक्स के लिए ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो उस केस में वो ई कंटेंट जो है वो ई कंटेंट एज अ सेल्फ लर्निंग मटेरियल और एज अ सेल्फ लर्निंग कंटेंट हम बना रहे हैं, वहां कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी, और ज्यादा फोकस्ड, और ज्यादा साइंटिफिकनेस, ये चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कंफ्यूज करने बहुत बार होता है ऐसा है कि जब हम स्लाइड शेयर से कोई वीडियो प्रेजेंटेशन डाउनलोड करते हैं, 40-40 स्लाइड का प्रेजेंटेशन होता है, बट वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। इसका रीजन क्या है? वो कंटेंट खराब है क्या? नहीं, वो कंटेंट खराब नहीं है। वो कंटेंट डिजाइन किया गया है फेस टू फेस प्रेजेंटेशन के लिए। वहां ये अज्यूम किया गया है कि ओरिएटर और मेंटर उस प्रेजेंटेशन के साथ है। जब वो साथ थे तो उस प्रेजेंटेशन का वो पार्ट है, मतलब उस पीपीटी इज अ इनकम्प्लीट इन दैट केस। अगर मेरा डिजाइन उस तरह का मैंने यूज किया है कि फेस टू फेस क्लास के लिए मैं जहां प्रेजेंट रहूंगा तो मेरा ये प्रेजेंटेशन बेहतर समझ में आएगा। अगर ये प्रेजेंटेशन मेरे एब्सेंस में कोई देख रहा है तो इन दैट केस दिस प्रेजेंटेशन इज अ इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन। सो यहाँ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मेरा जो ई कंटेंट है वो वहां मेरा प्रेजेंस रहने वाला है क्या? अगर मेरा प्रेजेंस वहां पॉसिबल नहीं है इन एनी फॉर्म, अगर ये प्रेजेंटेशन है और इसके साथ मैंने बाजू में एक वीडियो मेरा बनाकर दे दिया है इसको ओरिएंट करने के लिए, देन आई एम विद दिस प्रेजेंटेशन, समझ रहे हैं? तो वहां पर जब हम कोई भी ई कंटेंट बना रहे हैं तो उस ई कंटेंट का आप फेस टू फेस मोड के लिए, उपयोग के लिए बना रहे हैं या फिर सेल्फ लर्निंग के लिए बना रहे हैं, मतलब सेल्फ बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं, ये चीजें भी ध्यान में रखनी जरूरी है और उस तरीके से उसको फिर डिजाइन करना है। तो जहां हम फेस टू फेस मोड के लिए बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है तो मैंने आजू बाजू कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ मैंने कोई लिंक्स नहीं दिया है, एडिशनल रिसोर्सेस नहीं दिया है, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ ना एक्नॉलेजमेंट दिया है, यहाँ मतलब कुछ क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ खुद हर चीजें बताने के लिए। अगर मुझे इसको सेल्फ बेस्ड लर्निंग के लिए इस प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना रहता तो मैं यहाँ एडिशनल रिसोर्सेस की लिस्ट दे देता, जिसके बाबा ये थ्योरी पढ़ो फिर तुम्हें इस यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग पता चले। तो एक्नॉलेजमेंट जो हम जिसे कहते हैं कि हम किस रेफरेंसेस के बेस पर मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया है, वो रेफरेंसेस भी मुझे यहाँ देने हैं, तभी जाकर ये जो भी सेल्फ बेस्ड लर्नर है वो आपके प्रेजेंटेशन को समझ सकता है। तो ये जो अंतर है उन दो चीजों में वो भी समझना जरूरी है। ई कंटेंट ही है दोनों जगह, जैसे मैं पीपीटी फॉर मैं क्लासरूम के लिए बना रहा हूँ, मैं कोई अपना ही खुद का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं पहले क्लासरूम में वो वीडियो दिखाऊंगा एंड देन आई विल डिस्कस ऑन द वीडियो। तो उस केस में मेरा परव्यू, उसके लिए मेरा दृष्टिकोण क्या था, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है, वो सब बताने के लिए वहां मैं हूँ। लेकिन जब हम ग्लोबल वर्ल्ड में उसको फेंक रहे हैं किसी यूज करने के लिए तो उसकी यूजेबिलिटी उतनी नहीं रह जाती, आपके एब्सेंस में उसकी उपयोगिता उतनी नहीं रह जाती। तो ये भी पॉइंट कंसीडर करना है जब हम उसको डिफाइन स्पेसिफिकेशन और डिजाइनिंग स्टेज पर ही उसको आपको विचार में लेना है। उसी को हम मैप ऑफ एजुकेशनल सिनेरियो भी में उसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, अभी हम एक एक करके कुछ जो मेजर ई कंटेंट है उसकी बात करेंगे और उसको डेवलप करते वक्त हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है और किस तरह से हम उसको और बेहतर बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ जो रिसर्चर्स है ऑलरेडी हुए उनका रेफरेंस दिया हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि वर्होवन एंड प्रिफेटी जो है उनके अकॉर्डिंग he suggested that mixing up some components of multimedia could facilitate teaching of such text as dominated in a Mayer's cognitive theory. मतलब टेक्स्ट के बीच में अगर हमने कुछ एडिशनल मीडियाज को ऐड किया, जैसे ग्राफिक्स को ऐड किया, एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड किया, पिक्चर्स को ऐड किया, हो सके तो वीडियोज को, आज पॉसिबल है उसमें वीडियो भी ऐड करना, तो वो अगर हम करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. They try to find a way in a order to present multimedia text to improve learners reading experiences. यहाँ एक चीज, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एक्सपीरियंस. Whenever we are designing e-content, that time we always keep in mind experience. What experience student will get from this content? तो अगर रीडिंग का कंटेंट है तो रीडिंग एक्सपीरियंस क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स उन एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके ही बनेगा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम आल्सो. तो हम अगर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत फोकस और स्पेसिफिक बनता है. नहीं तो फिर इधर उधर का बहुत कुछ बताया और जो बताना था वो रह गया इस तरह से, या फिर इतना सब बताया कि उसमें जो बताना था वो खो गया. ऐसा जो होता है बहुत सारे टेक्स्ट में हम ये चीज देखते हैं, बिकॉज उन्होंने पहले से ये सोचा ही नहीं है कि व्हाट विल बी द रीडिंग एक्सपीरियंस, उसका रीडिंग एक्सपीरियंस क्या चाहता हूं मैं. तो जो लोग, जो राइटर्स इस बात को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट राइटिंग करते हैं, दे आर सक्सेसफुल राइटर्स. तो वही राइटर्स सक्सेसफुल होते हैं. तो सेम हियर आल्सो, जब हम टेक्स्ट ई लर्निंग कंटेंट बना रहे हैं तो वहां हमें ये ध्यान में रखना है. दे एडेड दैट ऑल द फंडामेंटल मॉडल्स दैट वेयर generated for teaching text have shown that understanding couldn't be achieved only by written on screen text. अब यहाँ पर जो टेक्स्ट था, मतलब एक कोई बुक है, बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने बुक को ना तुम अभी ई बुक बना दो. तो जब हम ई बुक बनाने की बात करते हैं, जो पहले से जो प्रिंट बुक है उसको ई बुक बनाने की बात, ऐसे नहीं होगा. उसको खाली रिटर्न को स्क्रीन में लाने से, मतलब जो एक आपकी हार्ड बुक है उसको स्क्रीन में कन्वर्ट करने से, स्क्रीन बुक में कन्वर्ट करने से उसका इम्पैक्ट बदलने वाला नहीं है. हाँ, अगर आपका वो बुक अगर एक्सटर्नल लिंक्स है उसमें एडिशनल रिसोर्सेस है, वो छोटा होते हुए भी ज्यादा मीनिंगफुल है, देन इट डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट एज अ ई बुक. तो ई बुक इज अ मच रिच सोर्स, वो ज्यादा रिच होता है कंपेयर टू द प्रिंट बुक, बिकॉज प्रिंट बुक्स की अपनी लिमिटेशंस है, तो ई बुक्स की अपने मेरिट्स है, अपनी लिमिटेशंस भी है. In addition, adding other components to the written on screen text allow the learners make connections about what is the text based on their previous knowledge. तो यहाँ पर जो मैंने अभी बात की, तो वहां पर हम उनके previous knowledge के साथ कनेक्शन के लिए एडिशनल मतलब हम लिंक्स दे सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स दे सकते हैं, एडिशनल रीडिंग की. जैसे आप अगर विकिपीडिया में पढ़ोगे तो विकिपीडिया में कोई मैं पढ़ रहा हूँ और किसी सेंटेंस का मीनिंग मुझे नहीं समझ रहा है, एक बुक में पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिक्शनरी लो देखो या फिर तो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोसेस है, तो उसको सीधा डिक्शनरी में भी मिलना संभव नहीं. बट अगर हम विकिपीडिया की बात करें तो वहां उसके लिए मतलब उस वर्ड में ही एक हिडन लिंक होती है जिसको हम क्लिक करके फिर उसमें क्या है, अच्छा ये है, तो फिर हम वो पूरे टेक्स्ट को समझ पाते हैं. उस अंडरस्टैंडिंग, वो प्रीवियस नॉलेज जरूरी है फॉर द अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. तो वो पॉसिबिलिटी ई टेक्स्ट में संभव है. तो एज अ गुड ई टेक्स्ट के रूप में, मतलब आज के दिनों में अगर ई टेक्स्ट की बात करें तो विकिपीडिया जो है वो एक अच्छा ई टेक्स्ट कंटेंट है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें उन्होंने, मतलब मल्टीपल मीडियाज को कवर करने की उसमें प्रयास होते हैं. हाँ, अभी इंटरएक्टिव ई टेक्स्ट तो आज का मॉडर्न डेवलपमेंट है, बट आज तक की अगर बात करें तो विकिपीडिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ई टेक्स्ट. उसके बाद में और भी कुछ है वो आप देख सकते. इन शॉर्ट, द प्रेजेंटेशन
of text content should be a specific, engaging and interactive. ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. क्या होना चाहिए उसमें? should be a specific, मतलब यहाँ बड़ा 600 पन्नों का ई बुक नहीं चाहिए, मतलब इतना कोई वो नहीं है. यहाँ स्पेसिफिक आपको क्या कहना है. अगर टेक्स्ट आप दे रहे हो फॉर द लर्निंग पर्पस, देन यू हैव टू बी स्पेसिफिक. एंगेजिंग, वो जो टेक्स्ट है वो एंगेजिंग होना चाहिए, रीड करने वाला उसमें एंगेज रहना चाहिए. तो इंटरएक्टिव, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट में जरूरी है. यहाँ पर हम कुछ गाइडलाइंस है टेक्स्ट कंटेंट राइटिंग. टेक्स्ट कंटेंट जो है उसकी अगर बात करें तो सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा यूजेबल कंटेंट है. इफेक्टिव है कि नहीं वो अलग बात है, मतलब वो डिबेट हो सकती है. वीडियो ट्यूटोरियल्स आर मोर इम्पैक्टफुल बिकॉज वहां पर ज्यादा मल्टीमीडिया यूज होते हैं. वहां सुना भी जा सकता है, वहां देखा भी जा सकता है, वहां कुछ सिचुएशंस फील भी किए जा सकते हैं. सो मेनी थिंग्स वी कैन ऐड इन अ वीडियो. बट टेक्स्ट जो है वो ज्यादा किफायती साधन है. मतलब हम अपने बच्चों को अगर वीडियो शेयर करते हैं पैंडेमिक में, तो उनके पास 1.5 GB का डेटा है जिसमें उसकी माँ भी यूज करती है, उसके पिताजी भी यूज करते हैं और उसको भी यूज करना है. तो इस केस में अगर हम उसको वीडियो शेयर करते रहेंगे तो उसका जो डेटा है, मतलब अफोर्डेबिलिटी जो है वो मतलब कई गुना वो महंगा हो जाता है. बात अगर हम अफोर्डेबिलिटी के दृष्टिकोण से करें तो टेक्स्ट की तुलना में वीडियो कंटेंट महंगा हो जाता है क्योंकि वो डेटा ज्यादा कंज्यूम करता है, स्टोरेज ज्यादा कंज्यूम करता है. तो उस कंपेयर में जो किफायती साधन है वो है टेक्स्ट कंटेंट. ई टेक्स्ट कंटेंट जो है वो बहुत किफायती और एक मुझे लगता है बहुत यूजफुल इस तरह का साधन है अगर वो सिस्टमेटिकली डिजाइन किया गया हो और वो यूज किया जाए. तो क्या करें हम जो इस टेक्स्ट को और यूजफुल बनाने के लिए? गाइडलाइन फॉर टेक्स्ट कंटेंट राइटिंग और डेवलपमेंट. स्प्लिट टेक्स्ट इन अ स्मॉल मीनिंगफुल रीडिंग चंक्स. तो बड़े बड़े टेक्स्ट, लंबे लंबे पन्नों के या बड़े बड़े टाइटल्स, बड़े बड़े यूनिट्स देने की बजाय हम क्या करें कि जो कंटेंट है वो टेक्स्ट कंटेंट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें. तो 2 या 1 या 1.5 पेज का, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, आपका क्लास साइज वगैरह वगैरह सारी चीजें देखकर उस हिसाब से आप छोटे छोटे चंक्स में छोटी छोटी कॉन्सेप्ट सारी एनालिसिस करके उसके टेक्स्ट अगर हम बनाएं और एक एक टेक्स्ट पढ़ने के लिए अगर अलाउ करें हम. क्या होता है जनरली इतना बड़ा, आप खुद भी देखिए, कोई PDF ई बुक डाउनलोड करते हैं और पहले हम देखते कितना लंबा है, 200-250 पेज का स्क्रॉल करते ही हम बंद कर देते. क्यों? हमें ऐसा लगता है कि इतना कौन पढ़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है. उसके बजाय अगर हमें 3-4 पेज का टेक्स्ट है तो हम रुक जाते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या है. वही तो रीजन है कि जो स्मॉल पेपर्स है वो ज्यादा रीड किए जाते हैं और जो बिगर रिसर्च पेपर है, लंबे लंबे रिसर्च पेपर है, वो ज्यादा रीड नहीं होते, मतलब पढ़े नहीं जाते हैं. तो स्मॉल चंक्स में हमें कंटेंट कम नहीं देना है, कंटेंट चंक्स में देना है, छोटे छोटे में. जैसे बच्चों को हम खाना खिलाते हैं कैसे करते हैं, छोटे छोटे बना के देंगे तो उतनी रोटी वो खा लेगा. तो वी हैव टू स्प्लिट टेक्स्ट इन स्मॉल मीनिंगफुल रीडिंग चंक्स. हमने हमारे जो ई कंटेंट है अलग अलग कोर्सेज के लिए बनाया, उसमें हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड वी हैव अ एम्पिरिकल एविडेंस रिगार्डिंग दिस. और ये चंक्स वाला जो, मतलब हमने पहले पूरा हैंडबुक दे के देखा तो उसका जो रिप्लाई है, जो रीडिंग बिहेवियर एनालिसिस है, उससे पता चला कि हैंडबुक पूरा देने पर किसी ने नहीं पढ़ा. बट उसकी बजाय हमने जब स्मॉल चंक्स दिए तो लोगों ने ज्यादा पढ़ा. और ओवरऑल अगर बात करें तो हैंडबुक ही ज्यादा पढ़ा गया क्योंकि वो स्मॉल चंक्स में दिया गया था. तो एक ही वक्त दिया तो एक बार उन्होंने ओपन किया, इतना लंबा है, देखा, क्लोज कर दिया. बट जब हम बार बार छोटे छोटे चंक्स में उनको दे रहे, हर बार वो 2-2 मिनट 4-4 मिनट उसके ऊपर स्पेंड करे, तो कलेक्टिवली he or she has spent more than 50 minutes on a whole book. So we use this strategy for the e-content development purpose, specifically in a text content development. Engaging कैसे बनाए? Use short stories, scenarios and case studies. इसके लिए कंटेंट में केवल और केवल एकेडमिक डिस्कशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन ये नहीं पढ़ा जाता है, ये नहीं पढ़ते हैं लोग, जो मेरा एक्सपीरियंस है. तो वहां अगर हम उनको उसकी
उसके साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में हम अगर सिनेरियोज देते हैं, कोई स्टोरी देते हैं, केस स्टडी देते हैं, तो डेफिनेटली वो पढ़ी जाती है, एंगेजमेंट जो है लर्नर का उसमें बढ़ जाता है। ये तो बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि हर किसी को स्टोरी, किस्से, कहानियां मतलब हमें हर किसी को पसंद है, हमें बोर नहीं होता है। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। कार्टून्स एंड ग्राफिक यूज थिंक ऑन इट और रिफ्लेक्ट ऑन इट टाइप चीजें, इन चीजों का अगर हम टेक्स्ट में यूज करते हैं तो डेफिनेटली जो टेक्स्ट है वो मोर एंगेजिंग हो जाता है। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड डायलॉग इन अ टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट है, हमें बहुत बार लगता है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखना, मल्टीपल चीजें एक ही सेंटेंस में डिस्कस करना, ये चीजें हम पहले के जमाने में बोलते थे कि ना, मतलब जो आसान चीज को मुश्किल करके बताना, तो उसको पहले टीचर कहा जाता था या वो पंडित कहा जाता था। तो उस तरह के टेक्स्ट जो है वो पढ़े नहीं जाते हैं ई कंटेंट में, खास करके वहां पर हमें क्यों, उसका रीजन क्या है? इट्स क्रिएट अ कॉग्निटिव लोड ऑन रीडर। अगर हम इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं सेंटेंसेस में, इंफॉर्मेशन बहुत दे देते हैं, या फिर रिलेशंस वाली चीजें इतनी ऐड करते हैं, तो उसके ऊपर कॉग्निटिव लोड आ जाता है। और कॉग्निटिव लोड आने पर, जैसे कंप्यूटर में लोड आ जाता है तो हैंग हो जाता है, उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। सेम थिंग जो टेक्स्ट पढ़ते वक्त अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लंबे सेंटेंसेस है, तो उस केस में निश्चित रूप से इट्स क्रिएट अ कॉग्निटिव लोड, एंड उस वजह से उस कंटेंट के जो मतलब उसका इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाता है और कंटेंट एंगेजिंग नहीं रहता है। तो हमें उसके लिए डायलॉग्स का यूज करना है, जिससे कि कनेक्शन बिल्ड होता है, और सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस विदाउट कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, उस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। और ये टेक्स्ट ज्यादा अप्रिशिएट, इवन हमने जो हमारे टेक्स्ट में देखा है, तो हमें भी बहुत उस पर इम्प्रूव करने की जरूरत लगती है, जब हम आफ्टर फीडबैक एंड ये सारी चीजें देखते हैं उससे उससे उसके रिलेटेड। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है, सिंपल लैंग्वेज एंड डायलॉग बेस्ड टेक्स्ट बनाना। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। द नेसेसरी एंड रिलेटेड मैटर कैन बी हाईलाइटेड यूजिंग headings, bold, underline, capital letters, large font, color and arrows। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जानते हैं पहले से। गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग टेक्स्ट कंटेंट्स, तो उसके लिए, और हाँ, दूसरा जो तीसरा पॉइंट है, इंटरएक्टिव कैसे बनाएं, कोई किसी टेक्स्ट को हम इंटरएक्टिव कैसे बनाएं। तो उसके लिए ऐड अ माइक्रो लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड वर्कशीट्स फॉर देम। मतलब उसी टेक्स्ट के साथ वहां पर एक वर्कशीट ऐड कर दीजिए और उसको बोलिए कि जो उस टेक्स्ट में बात की गई उसके ऊपर लिखो। तो क्या हो रहा है, वो उस कॉन्सेप्ट के साथ काम में लग गया है, वो बस पढ़ नहीं रहा है, वो बस सुन नहीं रहा है, वो उसके साथ लग गया है। तो वो अगर वो वर्कशीट फील करता है, मतलब ऊपर 10 लाइन का कंटेंट आपने डिस्कस किया है, देन आपका पूरा पन्ना जो है वर्कशीट दिया हुआ है। तो वो पूरा पन्ना किसने भरा है, वो पूरा पन्ना किसने क्रिएट किया? इट हैज क्रिएटेड बाय द रीडर। तो उसको क्रिएटर बनने का अवसर देना चाहिए बुक में भी, टेक्स्ट में। अगर हम लर्निंग के लिए ई कंटेंट डेवलप करें एज अ टेक्स्ट, तो वहां पर अगर उसको हम लिखने को देते हैं, तो he has added, उसने ऐड किया है, वो पन्ना फुलफिल किया है। तो उस तरह की वर्कशीट्स और स्मॉल लर्निंग एक्टिविटीज वी कैन ऐड इन बिटवीन द टेक्स्ट। Add additional resources like hyperlinks, video, infographics, concept maps, mind maps along with the text। टेक्स्ट के साथ साथ ये चीजें देना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने ये तो मल्टीमीडिया अप्रोच का ही प्रिंसिपल है, ये इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ई कंटेंट फॉर फोकस्ड
सॉरी अगेन मैं हमें कोशिश कर रहे थे कि ये जो लाइन स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो रिमूव करने के, जैसे जूम में भी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, रिकॉर्ड क्लाउड एनेबल, तो ये डिसेबल करना पड़ेगा शायद, तो वो ही कर सकते हैं, सर ही कर सकते हैं। ये जो है इंटोनेशन फॉर अदर्स, इसको जरा आप डिसेबल कर दीजिए सर। ठीक है, चलिए मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो अगर कहीं कुछ रह भी जाता है तो मिल जाएगा। तो इंटरैक्टिव टेक्स्ट को इंटरैक्टिव बनाना ये हमारा दूसरा चैलेंजिंग काम होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो हम गाइड करने की कोशिश। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स जो हमारे टेक्स्ट में हमने यूज किए, जैसे एक्टिविटी ऐड किया है, यस नो कांट से, तो यहाँ पर उसको जस्ट हमने कहा है कि वहां पर आप उसको बस टिक करिए, तो इससे उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर और एक चीज जो मैंने कोर्स के बिटवीन या जब वो यूज हो रहे तो देखा है, तो वहां हमें वी हैव टू गिव अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस अबाउट द वर्क। तो बहुत बार हम देखते हैं कि टेक्स्ट में ऐसी एक्टिविटी तो दी जाती है, बट वहां कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होते, मतलब क्लियर कुछ भी आइडिया नहीं होते एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो वहां ये जरूरी है कि उस माइक्रो लर्निंग एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली ही और शी हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, तो वो उसको क्लियर हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ई कंटेंट डेवलप करते वक्त ध्यान में रखना है। फॉर फोकस्ड रीडिंग इंक्लूड अ प्रैक्टिस क्विजेस इन बिटवीन द टेक्स्ट। तो रिट्राइविंग इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द लर्निंग पर्पस। तो उस दृष्टिकोण से जो पढ़ना हो रहा है वो पढ़ना फोकस हो। आपको एक बात देखिए, जब हम क्लासरूम में होते हैं, फेस टू फेस मोड में होते हैं, सेल्फ पेस में नहीं है या सेल्फ लर्निंग मटेरियल के साथ नहीं है, उस वक्त मोटिवेशन के लिए टीचर है, उसको एंगेज करने के लिए टीचर है, जो बोल रहा है, बिहेव कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज है, उसका फील है, उसका एक सहवास है जो कि मोटिवेट कर रहा है लर्निंग के लिए। बट यहाँ जो बुक वो पढ़ रहा है जो लर्निंग पर्पस के लिए एज अ ई कंटेंट, तो वहां पर उसको पढ़ने में मोटिवेट करने के लिए चीजें नहीं है, वहां कोई नहीं है उसको ये पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें बताने वाला। तो वहां पर अगर हम पजल्स ऐड करते हैं, क्विज ऐड करते हैं, तो वो क्विज उसको मोटिवेट करती है, वो क्विज उसको वहां पर 10-5 मिनट 15 मिनट रुकने के लिए उसको मजबूर कर देती है। तो उस क्विज से क्या होता है, उसका फोकस्ड रीडिंग बढ़ता है। तो उस तरह के फोकस रीडिंग के लिए, यस थैंक यू वेरी मच, तो फोकस रीडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की एक्ट क्विज है या पजल है वो हम इन बिटवीन द टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रास्ता है। अगेन अब हम वीडियो ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं, उसको क्या करना है। वीडियोस एंड एनिमेशन इज वन ऑफ द exciting pictorial form of presentation. It has a great power to improve human learning when the goal is to support deep understanding. तो इसलिए वीडियो से बेहतर एक वन ऑफ द बेस्ट, जैसे आप लोगों का मैंने कहा था कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो वीडियो ट्यूटोरियल्स को हाईएस्ट लोगों ने उसको कहा था। तो उसका मतलब है कि ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल ई कंटेंट हो सकता है, बट इट हैव अ ओन लिमिटेशंस आल्सो। तो ये महंगा है, ये ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला है, इसको स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा लगती है, वो सारे बहुत सारी दिक्कतें उसमें है, बट ये पॉसिबल है। अभी हम अगर ई कंटेंट के ऊपर ही टेक्स्ट कंटेंट की बात करें तो वहां और एक चीज हम कर सकते हैं, वीडियो भी हम अपने पीडीएफ में दे सकते हैं। कैसे देंगे पीडीएफ में वीडियो? तो वहां पर हम बार कोड ऐड कर सकते हैं। वीडियो का बार कोड अगर हम वहां देते हैं, रिलेवेंट कंटेंट के साथ वीडियो हमें अगर उसको दिखाना है, तो वहां उसका बार कोड दे दिया, तो सडन पढ़ते पढ़ते ही स्टूडेंट्स वो वीडियो भी देख लेगा और उसी पन्ने पर रहकर वो आगे का टेक्स्ट भी पढ़ेगा। तो उसको अगर हम सजेस्ट करते हैं कि वॉच द वीडियो पर्टिकुलर दिस, तो वो नहीं, कोई देखता नहीं है। ऐसे केस में जो रिसर्चर्स हुए वो बताते हैं कि हमने जब कोई एडिशनल रीडिंग एडिशनल वॉचिंग सजेस्ट करते हैं तो बहुत कम लोग उसको वॉच करते हैं। आपने भी ई कोर्सेज किए होंगे तो आप जानते हैं उसके लिए।
बट अगर वहीं पर वो वीडियो खुलता है, इन दैट केस इट इज वेरी यूजफुल। तो वहां हम बार कोड दे सकते हैं, या फिर फ्लिप बुक एंड ई बुक्स में जैसे इंटरैक्टिव ई बुक है फेसबुक से, या और भी बहुत सारे साधन आए हैं। अभी तो H5P में भी हम इंटरैक्टिव ई बुक डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर वहां करते हैं तो वहां तो दिक्कत ही नहीं, उसी पन्ने पर वीडियो खुलता है, तो कुछ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक ऑप्शन है। तो वीडियोस के लिए, वीडियो, अभी मैं लास्ट सेंटेंस पर जा रहा हूँ, वीडियो दैट आर डिजाइन्ड विदाउट फोकसिंग ऑन लर्निंग पर्पस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी कुड इजीली फेल। मतलब इस तरह का अगर वीडियो इम्पैक्टफुल होते हैं, लेकिन वो वीडियो समझ के साथ और कॉन्शियस के साथ, सही माइंडफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाने जरूरी है। अभी उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। यूज वीडियोज इन प्रेजेंटिंग एन interpretative function and revealing relationship that cannot be brought out to the learners where they exist। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो टेक्स्ट में हम बोल के या नरेट करके एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकते, लेकिन उस केस में उस तरह के संबंध, उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसेसेस हम वीडियो के द्वारा बहुत इजीली बता सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारे वीडियोस के द्वारा हम फिजिक्स की जो चीजें हैं वो समझा पाते हैं, जो कि एक्सप्लेन कितना भी करो वो समझ में नहीं आएगा। तो उस तरह के लिए यूज एनिमेशंस, एनिमेशंस यूज हो सकता है सेम पर्पस के लिए। यूज एनिमेशन टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, गिव द लर्नर कंट्रोल ओवर द पेस ऑफ द एनिमेशन और अ वीडियो। तो उसको कंट्रोल दे दीजिए, उसको टेक्स्ट चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, उसमें जो चाहिए उसको आगे जाने का, रुकने का, पॉज करके फिर देखने का, रिवाइंड करने का, तो वो कंट्रोल उसको होना चाहिए। अल्टर द ब्राइटनेस, उसको ब्राइटनेस जो है वो चीजें जो सफिशिएंट, उसमें आवाज, ब्राइटनेस, जो भी टेक्निकल चीजें है वो भी एक जरूरी चीज। गाइडिंग टू गाइडलाइन, इसी में कीप द लेंथ शॉर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट चीज। उसकी लेंथ जो है शॉर्ट रखिए। अभी कितनी शॉर्ट, तो सबसे अच्छा 2.5-3 मिनट का वीडियो ही होता है, क्योंकि अभी हमारे जितने लर्निंग वीडियोस है उनको जब मैं यूट्यूब में जाकर उसका एंगेजमेंट एनालिसिस देखता हूँ, तो आप कितना भी बड़ा वीडियो दो, एवरेज वॉचिंग जो वीडियो की होती है वो एजुकेशनल वीडियोस की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरीज डिस्कस होती है उसकी। अगर वहां पर वही रेसिपी वाला वीडियो रहेगा तो देन वहां पर 100% एंगेजमेंट रहेगी। बट जहां प्रोसेस है, असाइन करना, मतलब कुछ प्रोसेसेस है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन है या रेसिपी है, तो वहां तो वो हर चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि बनाना है तो डेमोन्स्ट्रेशन है। बट जहां थियोरेटिकल चीजें डिस्कस हो रही है, कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रही है, वहां पर ज्यादा रुकते नहीं है लोग 2-2.5-3 मिनट से। तो हमें उसको पावरफुल बनाना है। हमारा जो मैसेज है वो बहुत शॉर्ट में, स्मॉल, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट के लिए चंक्स बनाओ, उसी लिए वीडियो के लिए और स्मॉल चंक्स बनाने हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ होने चाहिए। मतलब अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं 8-10 मिनट, 7 से 10 मिनट के बीच में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन द कंटेंट एंड क्रिएटर जो भी बना रहा है उसका सारी चीजों पर है। बट जनरली 4 से 6 मिनट तक के वीडियोस हम रख सकते हैं, जो कि कम से कम आधे तो देखे जाएंगे, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। अवॉइड मिसिंग अराउंड द वीडियो। उसके अब बहुत कुछ उसके साथ देने की कोशिश मत करिए, मतलब बहुत कुछ उसमें ऐड कर रहा है, ऐसा नहीं। प्रेजेंट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, आइडिया इफेक्टिवली, जो भी आपको बताना है, स्मॉल करना है वो जो कॉन्सेप्ट है उसको। देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्यूजन ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। तो वीडियो में जो ये मल्टीमीडिया अप्रोच है, और वो खाली यूज करना नहीं, उसका प्रॉपर फ्यूजन होना चाहिए, ब्यूटीफुल फ्यूजन। इट्स अ क्रिएशन, मतलब यहाँ पर ई कंटेंट डेवलप करना इट्स अ क्रिएटिव टास्क। इसके लिए कोई पहले से डिफाइन करके नहीं बस, इट्स योर ओन क्रिएशन। तो आपकी क्रिएटिविटी पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना बेहतर उसका फ्यूजन आप कर सकते हैं। अवॉइड एनी एडिशनल जो मतलब विजुअल्स दैट आर नॉट यूजफुल फॉर, मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारी जो चीजें हम बहुत बार देखा जाते हैं इन अनप्रोफेशनल वीडियोस में, हम देखते हैं कि बहुत कुछ दिया हुआ है, इन मतलब साउंड भी चल रहा है पीछे, मतलब टॉक भी हो रहा है, पिक्चर्स भी जा रहे हैं, एनिमेशन भी चल रहे हैं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली वीडियो में पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज अवॉइड करनी है। यूज एंगेजिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड एग्जाम्पल इन नरेशन। जब
वीडियो में भी फिर अगेन वही चीज आती है, जब आप नरेट कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो कोई चीज, तो वहां पर भी शॉर्ट स्टोरीज और फिर सिनेरियोज वहां यूज करिए ताकि वो एंगेजिंग बने। उसके बाद में आता है गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग इमेजेस और इलस्ट्रेशन एंड इन्फोग्राफिक्स। नॉट ऑल इमेजेस इलस्ट्रेशन गिव अ गुड रिजल्ट। सभी कुछ भी हर जगह पर बहुत बार ये होता है कि हर जगह इमेज यूज करो, हर जगह पर इलस्ट्रेशन यूज करो, वो यूजफुल होगा ऐसे नहीं है। उसके लिए कुछ चीजें हम देख सकते हैं। प्रेजेंट इमेजेस और इलस्ट्रेशन दैट हैव एन एबिलिटी टू कवर ऑल द नीडेड मटेरियल विद अ स्पोकन टेक्स्ट रादर देन अ रिटर्न ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। तो जो स्क्रीन पर वो टेक्स्ट पूरा लिखने की बजाय, हम तो प्रेजेंटेशन में भी देखते हैं लोग सारा भर भर के टेक्स्ट ही दे देते हैं, तो वहां पर हम जो रिलेवेंट इमेजेस है जो उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर सके वो यूज कर सकते हैं। रिड्यूस द साइज ऑफ द इमेजेस इफ इट इज टू लार्ज। अगर वो बहुत बड़े हैं तो वो साइज भी रिड्यूस करिए। अवॉइड अननेसेसरी इमेजेस और इलस्ट्रेशन दैट डू नॉट ऐड नॉलेज। जिसका कोई उपयोग नहीं है तो वो अवॉइड करना है। गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग ऑडियो, उसके भी कुछ गाइडलाइंस है। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। Video must be presented in a sync with the presented image, animation और ऑडियो की जो बात करें वो भी अगर ऐसा है तो उसके साथ हो सकता है। क्लैरिटी, उसमें क्लैरिटी हो। द वीडियो फॉर्मेट मस्ट बी रिकॉर्डेड विद द सेम लैंग्वेज एज ए लर्नर की जो भाषा है उसी में। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दूंगा, सारे नहीं पढ़ूंगा, प्रेजेंटेशन में आपको शेयर कर दूंगा कि हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो वो सुना नहीं जाएगा, बट अगर किसी आरजे की, अगर रेडियो जॉकी की अगर बात करते हैं तो उसकी हर बात, लोग कहीं काम में भी होंगे तो रेडियो पर वो जो बोलता है तो उसके तरफ ध्यान सबका होता है। तो व्हाट इज द मैजिक, उसका जो क्या मैजिक है, तो वहां के वो किस तरह से वर्ड यूज कर रहा है, वो किस तरह से एंगेजिंग टाइप की वर्ड्स यूज कर रहा है, स्मॉल सेंटेंसेस यूज कर रहा है, क्लैरिटी कैसे वॉइस में है, तो ये जो चीजें हैं तो वही चीजें हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी लानी है। बहुत सारे एजुकेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत पुअर होते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो तो वो बहुत ही पुअर होते हैं। एक तो टेक्निकल क्वालिटीज अच्छी नहीं होती है, बैकग्राउंड में नॉइज है, ये है वो है। दूसरा आपके सेंटेंसेस आगे पीछे है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, उसका स्क्रिप्ट राइटिंग ठीक से नहीं है। तो इन चीजों की वजह से जो ऑडियो है वो एंगेजिंग नहीं होते हैं, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। Next. Let's share activity है। Write one thing which your student are not comfortable with e-content। तो अभी के लिए हम ये एक्टिविटी स्किप करते हैं। जो आपको यूज चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब हम डिस्कशन में आपके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करें तब आप उसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसको स्किप करता हूँ। अप्रोचेस टू डिजाइन ई कंटेंट, सबसे पहले तो मल्टीमीडिया अप्रोच है जिसकी हमने बहुत सारी बात की है यहाँ पर। दूसरा इंडिविजुअल और सेल्फ लर्निंग अप्रोच, तो जहां पर हम इंडिविजुअल और सेल्फ लर्निंग अप्रोच, मतलब सेल्फ पेस लर्निंग की मैंने उसको भी संक्षेप में इलेबोरेट किया है, तो वो एक अप्रोच है जिसके लिए आपको खास ध्यान रखकर उसको बनाना है। सोशल और कम्युनिटी लर्निंग अप्रोच, तो यहाँ जब हम डिस्कशन फोरम डिजाइन कर रहे हैं, चैट रूम डिजाइन कर रहे हैं या फिर शेयरिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कुछ से एग्जीबिशन रूम दे रहे हैं, तो उसको सोशल और कम्युनिटी लर्निंग अप्रोच का उपयोग वहां पर हमें करना है। एंड इंटरएक्टिव अप्रोच, तो उसके लिए किस तरह की एक्टिविटीज आप इस अप्रोच का उपयोग करके उसको बना सकते हो। तो ये अप्रोचेस यूज करके हम ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। पेडागोजिकल मॉडल जो है वो ये जनरली ये कोर्स डिजाइनिंग में यूज होता है, बट जब हम कोई स्मॉल कंटेंट भी बना रहे हैं तो सेम मॉडल हम ध्यान रख सकते हैं। एक तो हमारे कंटेंट में से उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको कुछ मिलना चाहिए लर्निंग के लिए, देन कंटेंट ही उसको प्रैक्टिस के लिए स्कोप कंटेंट में होना चाहिए, उसके प्रैक्टिस के बाद कंटेंट में ही रिफ्लेक्ट करने के लिए स्कोप हो, और कंटेंट में ही वो चाहे वीडियो हो, वो चाहे ऑडियो हो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो, तो क्रिएट और सॉल्व। तो
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो है तो वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रैक्टिस के लिए वहां पर एक आध इंटरैक्टिव वीडियो बनाया तो वहां एक रिफ्लेक्शन के लिए एक क्वेश्चन पूछा, और सॉल्व के लिए लास्ट क्वेश्चन या सिचुएशन दी और उसको रिप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला हम टेक्स्ट में, वीडियोस में, ऑडियोज में जो जिस टाइप का भी कंटेंट हम बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। लेट्स शेयर अगेन, एक क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस इन ई कंटेंट डेवलपमेंट। तो उसकी बात हम आपके साथ जब चर्चा करेंगे इस टॉपिक की, तो यू चैट बॉक्स, उसी को आप चैट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके साथ जब डिस्कशन का टाइमिंग है उसमें बात करेंगे। यहाँ पर एक कोट है कैथी मूर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग लाइवली ई लर्निंग is to see e-learning design not as a information design, हमें information present नहीं करना है, but as a designing an experience। तो उनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, उनको एक अनुभव देना है, एक एक्सपीरियंस देना है जो कि मीनिंगफुल है, जो पर्पसली डिजाइन किया गया है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, उसका एक्सपेक्टेड आउटकम इज अ प्री डिफाइंड। तो इस तरह से ये चीज, ये कोड भी हमने ध्यान में रखा तो हमारा जो कंटेंट है निश्चित रूप से इफेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर आपको एक थोड़ी बड़ी इस तरह की वेन डायग्राम है, डिजाइन इंटरएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्टिविटी। अभी मैंने वर्ड चेंज कर दिया, डिजाइन ई कंटेंट नहीं लिखा है, मैंने डिजाइन इंटरएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, व्हाटएवर ई कंटेंट फॉर दैट। तो ई कंटेंट डेवलप करने की बजाय हम अगर ई लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं तो वो कोई भी कंटेंट उसके रूप में निर्मित हो लेकिन वो इफेक्टिव हो सकता है। जैसे सोशल अलग अलग डायमेंशंस है जो हमारे साइकोलॉजी में सब लोग ये जानते हैं क्योंकि सभी एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और हर एक एरिया को कवर करने के लिए वो फिर चाहे सोशल हो, इंडिविजुअल अफेक्टिव लर्निंग, इंडिविजुअल कॉग्निटिव लर्निंग, सोशल अफेक्टिव लर्निंग। तो इसके लिए हम किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल इस डायग्राम में दिया गया है। तो यहाँ एक तरह से हम क्या क्या किस किस तरीके के ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं उसका गाइडलाइन है। ऑलरेडी हमने ये असाइनमेंट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, पजल्स, गेम्स, ग्रुप डिस्कशन, इनकी बात कर ली है। तो फिर मैं वही रीडिंग कोर्स मटेरियल वगैरह चीजें डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, लगता है वो लोड हो गया इसके ऊपर। हाँ, कनेक्टेड है जो अभी हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। स्प्लिट योर कंटेंट इनटू स्मॉल पीसेस, वो चाहे वीडियो के लिए हो या टेक्स्ट के लिए हो, इन्फोग्राफिक के लिए हो, माइंड मैप के लिए, कॉन्सेप्ट मैप के लिए, इवन इमेजेस के लिए, ग्राफिक्स के लिए, उसको स्प्लिट करिए। फाइंड द प्लेस टू ऐड अ लर्निंग एक्सपीरियंस विच विल रिलेवेंट द लर्निंग। तो वो जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसमें ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर वो लर्निंग एक्सपीरियंस फिट हो। तो वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। देन डिसाइड नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसका नेचर डिसाइड करिए। टू टाइप के लर्निंग एक्सपीरियंस वी कैन ऐड इन ई कंटेंट, माइक्रो लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मैक्रो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे माइक्रो में हम फोकस, रिफ्लेक्शन, पॉज इन इंटरएक्टिव वीडियो और अ टेक्स्ट, स्मॉल क्विजेस in between the text or a video, case or a scenario based group discussion in between a text or a video or a course, puzzle, games, make a notes activity also। इधर अगर हम मैक्रो की बात करें तो रिफ्लेक्टिव ग्रुप डिस्कशन विद फोकस क्वेश्चंस, असाइनमेंट, ग्रेडेड क्विज, प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो इसमें आप अपनी कुछ चीजें और क्रिएटिवली नई ढूंढ कर ऐड भी कर सकते हैं एज पर द टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजी। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी तरफ से पूरा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश की है। कुछ जगह पर हमें थोड़ा भागना पड़ा, बट मुझे लगता है इट इज सफिशिएंट फॉर योर एनलाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। आपके चैट बॉक्स के थ्रू अभी हम आगे 10 मिनट और ले लेंगे।
Madam, is there any question in chat box? Dear participants, if you have any query or any question regarding the today's session, please share your question in the chat box. Yes, this is very important thing. आप पूछिए, आप मैंने जैसे मेरे ही सवाल है उसी को लेकर आपने कोई प्रॉब्लम फेस किए हैं, डिजाइनिंग इश्यू चाहे इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड इश्यू हो, डिप्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यू हो ई कंटेंट के, तो आप वो पूछे ताकि वो इश्यूज मैंने स्पेसिफिक डिस्कस नहीं किए बिटवीन, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तो इश्यूज की बात होगी, ऐसा मैंने अज्यूम करके प्लान किया था. Thanks, sir. Well, we have been listening to the eminent speaker of the day, Dr. Mahesh, deliberating with methodology for e-content development. He has rightly said that out of all the technological innovations in the education sector in the past few decades, nothing has revolutionized learning more than virtual classrooms. And it is for both their efficiency and effectivity that virtual classroom software program continue to rise in popularity. To develop a knowledge society, it is essential to integrate ICT at all the levels of education system. He said that e-content is very powerful tool of education. It is valuable to the learners and also helpful to the teachers of all individual instruction system. Sir told us about two types of e-contents, that is created and the other is curated. He even told us about the e-content development process that is consisting of analysis, design, evaluation, and implementation. He has even given the guidelines for the text contents and for designing audio. He even added that by adding a systematic management to e-content development and delivery to virtual classes will change our learning and development culture for the better. Sir, the session was very informative, especially in the present context of online teaching. So now this is the question answering session. So if anybody has any query, then you may ask to the sir. Yeah, definitely. Welcome. I would like to listen you all. I'm looking at chat box. If someone to ask any question, please. No query? Okay. There is an end to everything, but we believe that there is never an end, but always a beginning. So thus to conclude for today, I request Dr. Paramveer sir to deliver the word of thanks to the sir. Thank you, Sunana ma'am. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on the occasion of this 1 week faculty development on 21st century skills in virtual classroom. I, on the behalf of Dev Samaj College of Education for Women, Firozpur City, and the entire college management committee, principal, and faculty, extend a very heartfelt gratitude to Dr. Mahesh Kaultame, Assistant Professor, PVDT College of Education for Women, SNDT University, Mumbai, for sharing and gracing your crucial work and sharing with us your valuable opinion and thought on the topic methodology for e-content development.
Sir explored various areas on the related topic as cognitive theory of learning, e-content creation versus curation, learning resources like text, PDF, flip books, video, audio recording, pictures, graphs, concept map, etc. Sir also highlighted e-content development process, designing, implementation, evaluation, and analysis, how to present content, map educational scenario, integration of media, text content development, video tutorial development. Sir also explored about the guidelines for designing audio, approaches to design e-content. There are various approaches in very effective way. Like there are various approaches of like multimedia, self-learning, community learning, interactive approaches, and sir very efficiently and very effectively explored a new topic, that is a pedagogical model and development of learning experiences, both the learning experiences, that is micro as well as macro. So at the end, we have been fortunate to have the eminent persona from various academic institutions and other workplaces. I am sure that the participants are benefited by the knowledge and information. Again, thank you all for your presence to make this event a great success. Thank you, Mahesh Kolmate sir. And Thank you. आपने Thank you very बहुत much. ही जो है अपना योगदान दिया, क्योंकि ई कंटेंट में आपका योगदान जो है मुंबई में है, पता है, मालूम है, मुझे भी पता है, जैसे कि मैंने आपने एक ई कंटेंट मूक पे डेवलप किया था, वो मैंने अटेंड किया था, तो बहुत ही वो सर अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उसमें हमने लिया था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय है वो हमें जो है दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। Thank you for such a great opportunity for me also. Thank you and wish you all the best.